Hello everyone, I am Lalita, your maths teacher. Today we are going to deal with chapter 1 for class 8 from Pearson IIT Foundation Mathematics. Our today's chapter that we are going to discuss is real numbers and LCM and HCF. Before starting the chapter, we are going to discuss some basic things. First one is that what are the numbers? Numbers क्या होते हैं? So numbers are the mathematical objects that we used for counting the objects and for measuring the objects and for labeling the objects. Means ऐसी चीजें जिनका यूज हम ऐसे मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट्स जिनका यूज हम क्या करते हैं, किसी भी चीज को काउंट करने के लिए करते हैं, किसी भी चीज को नंबरिंग देने के लिए करते हैं, या फिर कोई लेंथ या ऑब्जेक्ट उसको मेजर करने के लिए करते हैं. आज हम स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ नंबर्स. Our first topic that we are going to discuss is types of numbers. In this series, let me start from real numbers. What are the real numbers? Real numbers is the father of all the numbers in the number system. पूरे के पूरे नंबर सिस्टम में रियल नंबर्स फादर होता है सारे के सारे नंबर्स का. रियल नंबर्स में हम क्या पढ़ेंगे, क्या क्या इंक्लूड होता है रियल नंबर्स में? नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स एंड देयर प्रॉपर्टीज. मीन्स इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स एंड देयर वेरियस property. In addition to this, we are going to discuss rational number, irrational number, and at the end, we will deal with real numbers. So, let's start with types of numbers. In types of numbers, our first one is natural number. What are the natural numbers? All the counting numbers are called natural numbers. Means जितने भी हमारे काउंटिंग नंबर्स हैं उनको हम कौन सी कैटेगरी में रखते हैं? नेचुरल नंबर्स. काउंटिंग नंबर्स लाइक अगर मैं आपसे काउंटिंग पूछूंगी तो आप कहाँ तक बताओगे? कहाँ से स्टार्ट करोगे आप? 1, 2, 3, 4 एंड अप टू सो ऑन. So, these counting numbers are called natural numbers. The set of these numbers are represented by n. Means इन numbers के अगर हम एक set बनाते हैं तो उसको हम कैसे represent करते हैं? कैपिटल लेटर n. Now the main thing is what is the set? Set हमारे पास क्या होता है? अगर हम बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स की एक कलेक्शन बनाते हैं तो वो कलेक्शन क्या फॉर्म करती है? सेट. एंड वी विल ऑलवेज रिप्रेजेंट ए सेट बाय अ कैपिटल लेटर. सो n इज इक्वल टू 1, 2, 3. दिस फॉर्म द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स. नाउ द मेन क्वेश्चन इज what is the smallest natural numbers? So natural numbers कहाँ से start होते हैं? 1. तो smallest natural number क्या है? 1. Now we will discuss the second types of numbers, that is whole numbers. Now what are the whole numbers? Whole numbers क्या होते हैं? So all the counting numbers together with 0 means अगर हम सारे के सारे काउंटिंग नंबर्स में 0 को भी इंक्लूड कर लेते हैं तो हमारे पास क्या फॉर्म हो जाता है? सेट ऑफ
होल नंबर्स मीन्स अगर हम नेचुरल नंबर्स में जीरो को भी इंक्लूड कर लेंगे तो वो हमारे पास क्या बनेगा, सेट ऑफ होल नंबर्स। नाउ सेट ऑफ होल नंबर्स को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल लेटर W। सो W is equal to 0, 1, 2, 3 and up to so on. This represents the set of whole numbers. Now what is the smallest whole number? Because whole numbers कहाँ से start होते हैं, जीरो से। Therefore smallest whole numbers क्या है, smallest whole numbers क्या है, zero. Now the next one that we are going to discuss in this series is integers. What are the integers? Now all the natural numbers means सारे के सारे natural numbers, zero and the negative numbers, अगर हम इन सब numbers की एक collection बनाते हैं तो हमारे पास क्या फॉर्म हो जाता है, set of integers, that is natural numbers, zero and all the negatives of counting numbers. Counting numbers means आपको अभी अभी बताया था, that is 1, 2, 3, 4 and up to so on. अगर हम इन सबको एक साथ इंक्लूड करते हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है, वो set of integers. Now the set of integers are denoted by capital letter Z or I. So Z equal to 0, 1, 2, 3 and from the left of 0 -1, -2, -3. This will form the set of integers. Now there are two types of integer. The first one is positive integers and the second one is negative integers. पॉजिटिव इंटीजर्स में हम किसको काउंट करते हैं, 1, 2, 3 एंड अप टू सो ऑन। मीन्स पॉजिटिव इंटीजर्स में हमारे पास क्या आ जाता है, दीज नेचुरल नंबर्स। एंड इन नेगेटिव इंटीजर्स हम किसको काउंट करते हैं, -1, -2, -3 एंड अप टू सो ऑन। जैसा कि नेम सजेस्ट करता है, नेगेटिव मीन्स जिस नंबर के सामने माइनस का साइन लगा हो, तो these are the negative integers and these are the positive integers. Now the main question is that what about zero? जीरो को ना तो पॉजिटिव इंटीजर की कैटेगरी में काउंट किया है और ना ही नेगेटिव इंटीजर्स की कैटेगरी में। तो यहाँ से हमने एक कंक्लूजन निकाला that zero is neither a positive integer nor a negative integers. Means जीरो ना तो पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है, इट इज जस्ट एन इंटीजर। ये सिर्फ एक इंटीजर है, ना आप इसको पॉजिटिव बोल सकते हैं ना आप इसको नेगेटिव बोल सकते हैं। नाउ ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन का क्या मतलब है कि हमने नेचुरल नंबर्स के बारे में पढ़ा, होल नंबर्स के बारे में पढ़ा और इंटीजर्स के बारे में पढ़ा। अब हमने इन तीनों टाइप्स को डिस्कस करने के बाद क्या ऑब्जर्व किया, क्या क्या पता लगाया, वो सब हम इसमें डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। क्लियरली द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर इज 1, 2, 3, जैसा कि मैंने आपको बता दिया। एंड द सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज 1, 2, 3, 4 एंड अप टू सो ऑन। सो यहाँ से आपने क्या कंक्लूजन निकाला, that set of natural numbers n is included in the set of integers. Means आपने यहाँ से क्या कंक्लूजन निकाला कि अगर हम इंटीजर्स की बात करते हैं तो उसमें भी 1, 2, 3 काउंट होते हैं,
अगर हम नेचुरल नंबर्स की बात करते हैं तो उसमें भी 1 2 3 काउंट होते हैं। मीन्स इंटीजर्स इज अ बड़ा एक लार्ज सेट है और जो नेचुरल नंबर है वो एक स्मॉल सेट है। तो किसी भी स्मॉल थिंग्स को आप बड़ी चीज के अंदर आराम से ऑक्यूपाई करा सकते हैं। सो मैथमेटिकली हम इस चीज को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, दैट मैथमेटिकली हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, दैट n is a subset of z. Now this is the new word for you, that is subset. आप इस वर्ड को हायर क्लासेस में डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आपको एक स्मॉल सी तरीके से बताया जाएगा सबसेट क्या होता है। लाइक अगर आप एक छोटी सी चीज को बड़ी चीज के अंदर अच्छे से कन्फर्मली ऑक्यूपाई करा पाते हैं तो वो आपके पास आप क्या बोलते हैं, दैट n इज अ सबसेट ऑफ इंटीजर्स। दिस इज द साइन ऑफ सबसेट, or you can say that contained, that is set of natural number is contained in set of integers. Similarly you can say that all the whole numbers are also contained in the set of, जितने भी whole numbers का जो set है वो अच्छे से contain हो जाता है set of integers के अंदर। So you can easily see that whole number is a subset of integer. Clear to everyone? Now if I want to represent all these observations with the help of block diagram, then how can I represent it? Now if this is the set of natural numbers, now if I include 0 in this set, then this will become the set of whole numbers. Now if I include all the negative numbers in this, all the negative numbers in this, then this will form the set of integers. So from here you can easily see that सारे के सारे natural numbers is a subset of whole numbers, and further whole number is the subset of integers. Clear? Now we are going to discuss properties of integers. Properties of integers आपके पास क्या होती हैं? The first property that we are going to discuss is that the numbers that is exactly opposite means ulta, in sign to an integer m and equidistant from 0 on a number line is -m. क्या बताया गया है आपको कि अगर नंबर लाइन की हम बात करें, नंबर लाइन की अगर हम बात करें और वहां पे हम एक पॉइंट मार्क करते हैं 0। नाउ अगर हमें किसी भी कोई भी इंटीजर मैं यहाँ पे मार्क करती हूँ 2, तो 0 से इस 2 पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, 2 यूनिट। नाउ अगर मैं जस्ट 2 के अपोजिट बात करूं तो मुझे जो नंबर मिलेगा जो कि 0 से 2 यूनिट के डिस्टेंस पर ही होगा, वो नंबर मेरे पास क्या होगा, -2। क्लियर? नाउ नेक्स्ट वन इज प्रोडक्ट ऑफ। प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई। प्रोडक्ट ऑफ 2 positive integers is a positive integer. This is very simple, that is if we multiply any 2 positive integer, then
जो मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आएगा वो भी आपके पास क्या होगा, एक पॉजिटिव इंटीजर्स। मेनली हम पॉजिटिव साइन को मेंशन नहीं करते। नेक्स्ट वन इज प्रोडक्ट ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर इज अ पॉजिटिव इंटीजर। मीन्स अगर आप दो नेगेटिव इंटीजर को मल्टीप्लाई करते हैं तो जो आंसर आएगा आपके पास वो क्या होगा, एक पॉजिटिव इंटीजर। कैसे? लेट मी टेक एनी टू नंबर्स, -2 एंड -3। नाउ अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करती हूँ तो माइनस और माइनस क्या हो जाता है, प्लस, एंड 2 3 6। दैट मीन्स अगर मैं दो नेगेटिव इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करती हूँ तो जो आंसर आएगा वो आपके पास क्या आएगा, एक पॉजिटिव इंटीजर। क्लियर? नाउ नेक्स्ट वन इज द प्रोडक्ट ऑफ ए पॉजिटिव इंटीजर एंड अ नेगेटिव इंटीजर। मीन्स अगर मैं एक पॉजिटिव इंटीजर को और एक नेगेटिव इंटीजर को मल्टीप्लाई करती हूँ तो जो आंसर आएगा वो आपके पास क्या आएगा, एक नेगेटिव इंटीजर। सो लेट मी टेक एनी टू नंबर्स, -2 a positive integer and +3 a नेगेटिव इंटीजर। अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करती हूँ तो नेगेटिव और पॉजिटिव को मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है, माइनस, एंड द आंसर इज -6। तो एक नेगेटिव इंटीजर को और एक पॉजिटिव इंटीजर को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आपके पास क्या आता है, नेगेटिव इंटीजर्स। नाउ हमने डिस्कस किया व्हाट आर नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज सक्सेसर एंड प्रीडिसेसर। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज सक्सेसर? सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सक्सेसर क्या है। नाम से ही क्लियर है, सक्सेसर मीन्स सक्सेस, मीन्स वन स्टेप अहेड, आपको एक स्टेप आगे मूव करना है। कैसे? द नंबर obtained by adding 1 from the given integer is called the successor of the given integer। मीन्स आपके पास क्या है कि अगर आपके पास कोई भी आपको गिवन नंबर है, लेट मी टेक एन एग्जांपल लाइक +2। अगर मुझे +2 के सक्सेसर का पता लगाना है तो हम कैसे करेंगे? क्या बताया इसने? बाय एडिंग 1 फ्रॉम द गिवन इंटीजर। मीन्स गिवन इंटीजर में हम कितना ऐड करेंगे? 1। देन व्हाट विल वी गेट? 3। सो 2 का सक्सेसर आपके पास क्या आ गया है? 3। नाउ व्हाट इज द प्रीडिसेसर ऑफ अ गिवन नंबर? प्री मीन्स बिफोर, पहले। सो सक्सेसर मीन्स गो अहेड, मीन्स एक स्टेप आपको आगे की तरफ जाना है। प्रीडिसेसर मीन्स आपको एक स्टेप पीछे की तरफ बैक मूव करना है। मीन्स प्रीडिसेसर क्या होता है कि एक जो भी आपको गिवन इंटीजर है उसमें आपको एक स्टेप पीछे जाना है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल +2, देन व्हाट इज द प्रीडिसेसर ऑफ +2? -1 विच इज इक्वल टू 1। दैट इज 2 का प्रीडिसेसर आपके पास क्या हो जाएगा? 1। सो हेयर यू कैन इजीली सी दैट successor and predecessor. Find the, let me take an example, find the successor of the number -10। अब इसने हमसे सक्सेसर पूछा है। सक्सेसर मीन्स हमें एक स्टेप आगे की तरफ चलना है। अगर मैं नंबर लाइन की बात करूं, तो नंबर लाइन आपके पास इस टाइप से होती है। इसमें आपके पास क्या होता है? पॉइंट्स मार्क्ड होते हैं, 0 1 2 -1 -2। नाउ द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव इंटीजर इज कॉल्ड यूनिट
लेंथ। दो सक्सेसिव इंटीजर्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे आप क्या कहते हैं? यूनिट लेंथ। नाउ successor of number -10, if I will talk about on the number line that अगर हम राइट साइड पे मूव करते हैं तो जो नंबर्स हैं वो इंक्रीजिंग होते हैं, एंड इफ आई विल टॉक अबाउट on the left side then these are in decreasing order. Okay, now successor of -10 means आपको एक स्टेप आगे मूव करना है। अगर इसी नंबर लाइन पे बात करें तो प्रीवियसली मूव करते करते हम कहाँ पे आ जाएंगे? -2, -3, -4। फॉर एग्जाम्पल जैसे दिस इज 0, this is 1, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7 and goes on because it is a line, so हम इसे दोनों डायरेक्शन में इजीली मूव कर सकते हैं। अब सक्सेसर की बात है, -10 का सक्सेसर मीन्स आपको एक स्टेप आगे मूव करना है, तो -10 में एक स्टेप आगे मूव करने पे आप कौन सी इंटीजर पे पहुंचते हैं? -9। सो -10 का सक्सेसर आपको क्या मिल जाएगा? -9। नाउ अगर हम इसको मैथमेटिकली देखें तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? -10 + 1, व्हाट विल वी गेट? वन नंबर इज माइनस and one of प्लस, देन द साइन विल बी ऑफ लार्जर नंबर। मीन्स अगर एक नंबर आपके पास माइनस है और एक नंबर आपके पास प्लस है तो साइन हमेशा किसका आएगा? लार्जर नंबर का। एंड 10 और 1 में लार्जर नंबर इज 10, सो साइन इज ऑफ नेगेटिव नंबर एंड 10 - 1 इज 9, सो सक्सेसर ऑफ -10 इज -9। नाउ similarly find the predecessor of -7। predecessor means जैसे मैंने आपको बताया एक नंबर आपको पीछे मूव करना है। अगर आप -7 से पीछे मूव करेंगे, अभी मैंने आपको नंबर लाइन ड्रॉ करके दिखाई, अगर इसमें आप एक स्टेप पीछे मूव करेंगे देन व्हाट विल यू गेट? -8। सो व्हाट इज द predecessor of -7? दैट विल बी -8। अगर हमें ये मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करके दिखाना है तो हम कैसे करेंगे? -1 एंड वी विल गेट -8। माइनस माइनस विल बी प्लस एंड साइन विल बी नेगेटिव। सो आई होप आप सबको प्रीडिसेसर और सक्सेसर का कंसेप्ट इजीली क्लियर होगा। नाउ we will discuss further in the next video. Till then, keep practicing with the example with natural number, whole number, integer. Mathematics is all about practice, so keep going on practice, practice, practice. Thank you.